میں پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ تھا اس پہ میں خیبر پختونخوا کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی، جو ان کی قومی غیرت کے اوپر مبنی پالیسی، خودداری اور ملکی خود مختاری کے جو فیصلے تھے اس کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تمام پارٹیوں کا صفایا کر دیا۔ بڑی بات ہوتی تھی ایک ریجن کی کہ وہاں پہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ وہ تو ان کا گڑھ ہے، وہاں پہ بھی ان کو بری طرح شکست دی۔ ملاکن ڈویژن میں بھی تمام پارٹیوں کو بری طرح شکست دی۔ تو میں اس پہ اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سوال پوچھ رہے ہیں اور 3 سوال کر رہے ہیں۔ پہلا سوال کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی؟ بھائی ضرورت تھی، اور قوم کا فیصلہ آپ نے سن لیا کہ جب عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار پہ قوم نے لبیک کہا اور عمران خان کی پالیسیز کی حمایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ ٹی ٹی آپ سب جانتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی 375 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور 1600 کروڑ شہباز شریف کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں آتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں سوال پوچھتا ہوں اور قوم نے جواب دے دیا کہ 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا دہشت گردی کی جنگ میں، 7,000 سیکیورٹی فورسز ہمارے کے جوان ہمارے شہید ہوئے، ہر گھر سے جنازہ نکلا۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ اس لیے بولا کہ پاکستان میں مزید دہشت گردی نہ ہو، مزید کسی کے جنازے نہ اٹھے، مزید یہاں پہ ہم کسی کی جنگ کا ایندھن نہ بنے اور ہمارے جنازے نہ اٹھے۔ دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی یہ بیان دینے کی کہ اگر ڈرون نظر آ جائے تو میں اپنی ایئر فورس کو کہتا ہوں کہ اس کو گرا دینا۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ 400 ڈرون حملے ہوئے آپ کے وقت پہ، ایک ڈرون حملہ بھی عمران خان کے ٹائم پہ نہیں ہوا، لیکن کیا یہ لوگ مجھے 2 چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ تو اس لیے بات نہیں کر سکتے تھے ویکی لیگ سے، اور جب CIA کے ڈائریکٹر سے میٹنگ کر رہا تھا زرداری، اس میں تو ثابت ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مزید لوگوں کو مارو، لیکن جب ہم ڈرون کے خلاف دھرنا دیے بیٹھے تھے تو اس وقت ایک معصوم بچی جس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھی اور اس کے گھر سے 9 جنازے نکلے تھے، اس کے والدین بہن بھائی سب شہید ہو چکی تھے ایک ڈرون اٹیک میں۔ مدرسے کے اوپر باڈ روڈ میں ڈرون حملہ ہوتا ہے، 72 بچے تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے وہاں پہ شہید کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس وقت خاموش ہیں کیونکہ آپ کی باہر جائیدادیں ہے، کیونکہ آپ کے اثاثے ہیں، کیونکہ آپ لوٹ کے پاکستان کا پیسہ باہر لے کے گئے ہو۔ عمران خان کی باہر جائیدادیں نہیں۔ عمران خان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، ملک کی خود مختاری اور پاکستان کی فضائی اور زمینی سرحدوں کی پامالی کو روک سکتا ہے، اس لیے عمران خان نے ڈرون حملوں کے حوالے سے یہ بیان دیا۔ اور تیسرا، سینٹ میں یہ قرارداد جمع کرتے ہیں، فضل الرحمان کی جماعت سینٹ میں قرارداد جمع کرتی ہے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو یورپین یونین کو یہ کہنے کی کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے؟ کیا آپ نے انڈیا کو ایک خط لکھا کہ جب کشمیر میں وہ ظلم ستم کے پہاڑ ڈالا تھا تو عمران خان کے اوپر قرارداد جمع کر دی کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ بھائی خود فیصلہ کرو، اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ آپ تو 1947 میں آزادی حاصل کر کے بھی کسی کے غلام بیٹھے تھے۔ آج آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا جس نے اقوام متحدہ میں دنیا کی ایوانوں میں پاکستان کا اسلام کا مقدمہ لڑا۔ بحیثیت پاکستانی میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا عمران خان نے ظلم کیا کہ جو اسلام کو پروپیگنڈے کی وجہ سے دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا اور ایک منظم سازش کے تحت اور پروپیگنڈے کے تحت اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، تو کیوں کوئی نہیں بولا؟
क्या ये आप लोग यहाँ पे सियासी मूल भी नहीं देखते? क्या ये आप इन सियासतदानों को नहीं देखते? इमरान खान ने यही मुकदमा लड़ा और 15 मार्च को अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हो गई है कि हर 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पे मनाया जाएगा, जुर्म तस्वुर किया जाएगा। तो ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का आप पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ा, ये आपको ये फख्र हासिल है कि आपका वजीर आजम था, इमरान खान था जिसने ये मुकदमा लड़ा। हम सब की, आप सब जो मेरे सामने खड़े हैं, हमारी अरबा मुसलमानों की दिल आजारी होती थी गुस्ताखाना खाकों की वजह से। हम अपने मुल्क के सड़कों पे टायर जला के अपने गुस्से का इजहार करते थे। किसी ने दुनिया के ऐवानों में बात नहीं की, किसी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कभी आपने नहीं सुना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजा। लेकिन इमरान खान ने वो मुकदमा लड़ा और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ और इस्लामोफोबिया के खिलाफ अब करारदाद मंजूर हो गई। तो ये इमरान खान की कामयाबी है। मैं आखिर में, कौम का फैसला आप सब ने सुन लिया। 27 तारीख को जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा यहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ था, ये पैगाम था जो रिजीम चेंज की बातें करते हैं, जो और इमरान खान की जो बातें मैंने आपको बताई, इसकी वजह से क्या होता है कि 7 मार्च को एक दम की अमीज मरासला आता है, 7 मार्च को, और 8 मार्च को अदम एतिमाद की तहरीक जमा की जाती है। 7 मार्च को क्या कहा जाता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतिमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को धमकियां दी गई, इमरान खान को धमकियां दी गई, और अगर अदम एतिमाद की तहरीक कामयाब होती है तो मुआफ़ी मिल सकती है। क्या हम गुलाम हैं यार? आज पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है। कौम ने तो फैसला सुना दिया। ये दूसरे जो बेज़मीर लोग हैं, जो आज अगर 20 अरब रुपए लगा के कोई हुकूमत चेंज करने की कोशिश करता है, कल 50 अरब रुपए दे के आपके मुल्क को भी बेच देंगे। हम ये तमाशा देखते रहेंगे। आप बुज़दिल थे, आप बात नहीं कर सकते थे क्योंकि आपकी बाहर जायदादें थी, आपने करप्शन का पैसा बचाना था। इमरान खान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे उनको ईमान है, उन्होंने, उनका अकीदा पुख्ता है, उन्होंने बात की है इस्लाम की, पाकिस्तान की कौमी गैरत की, खुद मुख्तारी की और खुददारी की, और पूरी पाकिस्तान ने इमरान खान का इसमें साथ दिया है। कल के नताइज के हवाले से मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पहला मरहला हुआ था, तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो गई, लेकिन किसी ने सवाल ही नहीं पूछा था। जो 2 पार्टियां जश्न मना रही थी, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, उनकी सीटें ही नहीं थी, सफाया हो गया था, और अब तो पूरा झाड़ू पेर दिया गया। और याद रखे, जो भी अब इस बैरूनी साजिश में अंदरूनी सतह पे मोरे बन के इन साजिश का हिस्सा बनेंगे, उनके साथ यही होगा जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने कल फैसला किया है। मुराद साहब, 172 का फिगर क्या होने जा रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है, और क्या ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को खतरा है, सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है? उस पर भी कमेंट करें। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब दुनिया की ऐवानों में इस्लाम का पैगाम गूंजा और जिस अंदाज से उन्होंने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने का प्रोपेगेंडा और एक अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, और एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उन्हीं के घर में, उन्हीं ऐवानों में, उन्हीं की ज़बान में उनका तमाम प्रोपेगेंडा का सत्यानाश कर देते हैं, तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि उनके खिलाफ साजिशें नहीं हुई? जब वो कहता है कि मेरी मुल्क की कौमी गैरत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, खुद मुख्तारी और खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तो आपका क्या ख्याल है? वो तो इसके आदी थे, उनको तो जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोग मिले थे कि इधर फोन किया कि डू मोर, और वो अपने लोगों के ऊपर शुरू होते थे। रोजाना हुक्म मिलता था। CIA के डायरेक्टर के साथ मीटिंग का मैंने हवाला दिया, उसमें हुसैन हक्कानी भी बैठा था। पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि ड्रोन में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। जरदारी उनको कहता है कि फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा और मारो। वो तो इन लोगों की आदी थे, वो तो आदी थे फजलुर रहमान के, कि विकीलीक से साबित होता है कि अमेरिकन एम्बेसडर एन पेटरसन के पास जाके फजलुर रहमान कहता है कि मुझे खिदमत का मौका दो, जरदारी और नवाज शरीफ से मैं आपकी अच्छी खिदमत करूंगा। अगर एक लीडर जो इस्लाम का और पूरे OIC को, आलमी इस्लाम को, पूरे इस्लामी दुनिया की वज़राए खारजा को आपने पाकिस्तान में इकट्ठे किया,
और उन सबको यहाँ पे जमा किया, आपका क्या ख्याल है कि साजिशें नहीं होगी? पाकिस्तान आज जिस तरफ गया हुआ है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम, आप देखें इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो करारदाद जो पास हो गई है इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरे आलम इस्लाम जो इस्लामी ममालिक है उनके इमाम है, उलमा है, उनके बयान जरा टीवी पे दिखाई है, वो क्या सोच रहे हैं। वो आप सबको फख्र होना चाहिए कि आपका मुल्क था, आपका वजीर आजम था जिसने मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। तो इसके बाद तो धमकियां भी मिलती है, और धमकियां तो कोई खुल के नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद 8 को आता है, 7 मार्च को मरासला आता है कि अदम एतमाद अगर नाकाम हुआ तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, और अगर कामयाब हुआ तो मुआफ किया जा सकता है। भाई वाह। सर ये बताइएगा, देखिए बात इस वक्त आपका सवाल जो है बास भाई वो इख्तिदार के हवाले से है, मैं अक़दार की बात कर रहा हूँ, कौमी गैरत की बात कर रहा हूँ। बात बहुत आगे निकल गई है, इस वक्त बात पाकिस्तान की खुददारी की है, खुद मुख्तारी की है। मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से अब कल कौमी सलामती कमेटी ने एंडोर्स कर दिया बिल्कुल है किया सारी चीज़ों को, तो हुकूमत ने ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दिया, तो अब क्या हुकूमत उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात किस तरफ जाएगी? देखिए बिल्कुल कल पहले तो ये सवाल पूछा गया, जाहिर सी बात है कि जो गुलाम थे, और कल ख्वाजा आसिफ जो पहले भी अमेरिका जाके कहता था कि उससे सवाल होता है अमेरिका में, ज़रा वो क्लिप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा वो दिखाए, उससे सवाल होता है कि आपकी और इमरान खान की खारजा पॉलिसी में क्या फ़र्क है। तो ज़रा मौसूफ की गुफ्तगू सुनिए। वो कहता है इमरान खान वो दीन की तरफ राग़िब है, वो मज़हब की तरफ, इस्लाम की तरफ, इसके ऊपर बड़ा राग़िब है, और हम बड़े लिबरल हैं। और कल आपने उसके स्टेटमेंट सुने, हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, इनके आगे किसी की ताकत है वो ये जानते हैं ये सारे गुलाम। और जो आपने सवाल किया लीगल ऑप्शंस का, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास हुआ और उसका इलामिया जारी हुआ, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो दखलंदाजी की गई, इसमें कोई शक नहीं कि अदम एतमाद 8 तारीख को आया और 7 तारीख को पाकिस्तान को मरासला इमरान खान के खिलाफ भेज दिया गया कि इमरान खान की हुकूमत हटाई जाएगी तो माफ किया जा सकता है, नहीं हटी तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। वो तो कल साबित हुआ। लीगल ऑप्शंस क्या है उसके ऊपर हमारी लीगल टीम आपसे बात करेगी। मुराद सईद साहब, बज़ाहिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने जा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत शो कर दी है कल कौमी असम्बली के इजलास में। अब तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन अगर आप हार जाते हैं तो क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे या फिर असम्बली से रिजाइन कर जाएंगे? देखिए पहली चीज़ तो ये है ना कि इस पूरे सिस्टम के अंदर इस वक्त जो अभी हो रहा है इसमें तो सवाल कुछ और बनता है। सवाल ये बनता है कि 15-20 अरब लगा के और किसी ममालिक और आलमी साजिशें हो के कोई भी आके 15-20 अरब लगा के आपकी हुकूमतें गिरा सकता है। ये शर्म की बात नहीं है? आपको बेहैसियती पाकिस्तानी क्या फीलिंग आ रही होगी? आप अंदाजा करें कि जब काबीना में हम ये मरासला हमारे सामने रखा गया तो बेहैसियती पाकिस्तानी आपकी क्या सोच होगी? मैं तो फख्र महसूस करता हूं आज अपने कायद पे। मैं तो हमारी कौम तो आज मकरूज है। मकरूज क्यों है? जब दहशतगर्दी की जंग में मेरे घर पे माटर गोले बरसाए गए और मेरा घर गिर गया और मेरी वालदा को गोली लगी तो मैं किसी से क्या किससे बदला लेता? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आप अपने लोग आप बदला ना ले सको, और हमसे सबसे बड़ा दुख ये होता था कि एक तरफ दहशतगर्दी का शिकार भी हम हैं और दूसरी तरफ हमारे ऊपर इल्जाम भी है। किसी ने हमारा मुकदमा लड़ा था? अब जरा पूछो ना उन लोगों से यार जिनके घर से जनाजे उठे हैं। एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर हमारे गांव में 17 लोग शहीद हो गए थे। वो अपने घर में बैठे थे, मासूम बच्चे थे, उसमें उनका क्या कसूर था यार? अगर इमरान खान ने आज ये बात की है कि मैं किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा तो जुर्म क्या है? और जब आप ये बात करेंगे तो कोई भी आपके खिलाफ साजिश कर सकेगा। सवाल तो मेरा ये बनता है, सवाल मेरा वही बनता है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ अगर इमरान खान खड़ा हो गया तो 400 ड्रोन हमले आपके मुल्क के अंदर हुए, सिर्फ 2 ड्रोन हमलों का हवाला मैं दे रहा हूं। जरा खुद सोचिए, और अल्लाह ना करे लेकिन एक लम्हे के लिए उस मासूम बच्ची को जिसको हम कंटेनर पे लेके आए थे कि दोनों टांगे ड्रोन हमलों में उसकी जाया हो चुकी है और घर से 9 जनाजे उसके निकल चुके हैं, वालिदैन फोत हो गए, उसकी बहन भाई सारे शहीद हो गए। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपकी बच्ची होती आप पे क्या गुजरता। आज इमरान खान ने उन लोगों की बात की है, 7000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, वो अपने मुल्क का दिफा करते हैं। जरा उनके बच्चों से तो पूछे ना उनके ऊपर क्या गुजर रही है। इस मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए,
हमारा क्या लेने देना था इस जंग से? तो क्या जुल्म किया कि अड्डे देने से इनकार किया? फिर आगे जाइए इससे कि इमरान खान अगर कहता है कि मैं आजाद खारजा पॉलिसी होगी, डिटेक्शन नहीं लूंगा, तो आपको फख्र होना चाहिए या इन साजिशी लोगों के वो जो मंडी लगी हुई है उसके ऊपर बहस होनी चाहिए? मैं तो समझता हूं कि हम ये जो कुछ हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम खुददार है, लीडर बुज़दिल थे, ये सियासतदान बुज़दिल थे माजी के। नवाज शरीफ जो बघोड़ा बाहर बैठा हुआ था वो बुज़दिल था, वो अपनी जायदादें बचाता था, वो किससे मुलाकातें करता है लंदन में, क्या किसी को पता नहीं है? आपने क्या जो अजीत दवल है उसका स्टेटमेंट आपके सामने नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का? क्या जरदारी ने खुद नहीं कहा था कि ये तो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है? तो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। एक शख्स खड़ा है इमरान खान, और आप अंदाजा करें कि हमारी इन आजाद पॉलिसियों के लिए वो कितनी कीमत अदा कर रहा है। और आजाद कौम में अगर आजाद पॉलिसी इख्तियार करेगी तो उसकी कीमत होती है, और हम वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं।